بڑے عزت اور احترام سے ہم پاسٹر جی کو ویلکم کریں گے اور میں تمام بہن بھائیوں سے سوری کروں گی جو بہن بھائی ابھی ورشپ میں رہ چکے ہیں وہ دعا میں رہنمائی کریں گے بعد میں. پریز دی لارڈ. ویلکم پاسٹر اشرف بٹو. خداوند آپ کو برکت دے کثرت سے. ہاللویا. گہرے مکاشفات آپ کو کر ڈالے. پریز دی لارڈ. تھینک یو. اوکے، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور میں سسٹر انیتا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہانت کی ذمہ داری کو سنبھالا اور بہت اچھے طریقے سے لیڈ آؤٹ کیا. خداوند آپ کو بیٹا برکت دے. آج ہم مکاشفہ 6 باب اور اس کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی مہر کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں. مکاشفہ کی یہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت سی چیزیں جو وقت آنے پر پوری ہوں گی. لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مہر جب کھلی تو 31 سے 100 عیسوی تک اس کا دورانیہ تھا. یعنی سفید گھوڑا ہم نے دیکھا جس میں کلام کی سچائی کو پھیلایا گیا، جس میں جو شاگردوں کی کلیسیا تھی اس میں تمام لوگ جو یہ سفید گھوڑا خدا کے کلام کو کی سچائی کے بارے میں ظاہر کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 100 عیسوی سے لے کے 313 تک لال گھوڑا، یعنی بہت سے مسیحوں کا خون بہایا گیا، آزارسانی دی گئی، انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا نصب و لینس بنا لیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں 313 سے 538 اے ڈی کے درمیان کالا گھوڑا ہم نے دیکھا، اور یہ وہ دور تھا جس میں کلام پر پابندی لگائی گئی. یہ وہ دور تھا جب تمام رسومات جو ہیں کلیسیا کے اندر جو آئیں وہ بت پرستی کی رسومات تھی. جب یہ بت پرستی کی رسومات آئیں تو کلیسیا کا ایک دم جو رویہ ہے تبدیل ہو گیا. اس کے کمپرومائز انہوں نے کیا، انہوں نے سمجھوتا کر لیا. بت پرستوں کو جسٹ کرنے کے لیے سمجھوتا کیا گیا اور بہت سے بت پرست کلیسیا میں شامل ہو گئے اور وہ کلیسیا کو آگے لے کر چلنے لگے. آج ہم سیکھیں گے کہ 538 سے 1517 عیسوی میں کیا ہوا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ مارٹن لوتھر، ویسلے، جان ہیس، والڈنسیز، کیلون اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے کلام کی تشریح شروع کر دی. کلام کو اس کی صحیح جو روح تھی اس کے ساتھ جاننا شروع کر دیا. کلام کو دوسری جگہوں پر پھیلانا شروع کر دیا. اور جب یہ تمام کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت کو ہم ڈارک ایجز کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ کس طرح جو ڈارک ایجز تھا وہ اندھیر نگری تھی. آئیے ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں. 7ویں آیت. اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس سوار کا نام موت ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے اور ان کو چوتھائی زمین پر اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور رویا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے. بڑی اہم چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آزارسانی کا ذکر کیا گیا ہے. زرد گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ زرد آپ کو پتہ ہے پیلا رنگ. پیلا رنگ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟
जो तकरीबन मौत के शायद करीब हूँ, या बीमार शख्स, लागर शख्स, उनका जर्द रंग होता है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि ये रूहानी तौर पर लागर लोग थे, रूहानी तौर पर इन्हें कोई किसी काम का पता नहीं था, बल्कि वो बुत परस्ती की तरफ माइल होते गए, कंप्रोमाइज उन्होंने किया। और हम देखते हैं कि इसके दौरान जब बहुत खून बहाया जा रहा था, बहुत से मसीहों को कत्ल किया जा रहा था, तो फिर हम देखते हैं कि ये मोहर जो है, इसमें लिखा है कि ये मोहर जर्द रंग को जाहिर करती है। मौत और कब्र के बारे में यहाँ पर आलमे रवा। और हम देखते हैं मुकाशवा 1 बाब और उसकी 8 आयत में कि इस पर तो अख्तियार यीशु मसीह का है। मौत और आलमे रवा पर अख्तियार किसका है? मेरे खुदा का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काल, फिर हम देखते हैं कि काल पड़ा, खुदा के कलाम का काल, और खुदा के कलाम पर अमल करने वालों की वजह से आज हम देखते हैं कि आज तक ये कलाम कायम है। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे जो खुदा चाहता। वो उन अहकामात की पैरवी करते थे, लेकिन उन्हें इसलिए कत्ल किया गया कि वो खुदा की बातों पर अमल करना चाहते थे। पुराने अहद में हम देखते हैं तलवार, काल, वबाई बीमारियां और हवानों का जिक्र भी हम पढ़ते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? ये क्यों जो ये चौथी मोहरा जब ये खुली तो इसका नाम मौत है? ये मौत क्यों आती है? ये आलमे रवा का अख्तियार क्यों इंसानों पर जाहिर होता है? और पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने पहले से बता दिया कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह गुनाह के नताइज हैं। गुनाह के नताइज जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है। और ये मौत और ये काल और ये वबा, ये तमाम का जिक्र हम आइए अबार 26 बाब और 21 से 26 आयत पढ़ते हैं, जहाँ पर खुदा ने हमें बता दिया पहले से कि अगर तुम ये करोगे तो उसके नताइज क्या होंगे। अगर तुम खुदा के हकामात की पैरवी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। और बिल्कुल वही लिखा है जो इस मोर के अंदर जब ये खोली गई तो उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। आइए अबार 26 बाब और उसकी 21 से 26 आयत देखते हैं। अगर किसी के पास बाइबल है पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़िएगा। अबार दैश खरूज अबार। जी पास्टर जी, मैं पढ़ता पास्टर जी पढ़े। अबार 21 से 26 आयत तक। और अगर तुम्हारा चाल चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर ताज गनी बनाए लाऊंगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा जो तुमको बेऔलाद कर देगी और तुम्हारे चौपायों को नीच करेगी और तुम्हारा शुमार घटा देगी और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो ऐश शिकनी का पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जाकर इकट्ठे हो जाओ तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गैनम के हाथ में सौंप दिए जाओगे
और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ूंगा तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी थैंक यू। और तुम्हारी रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी और तुम खाते जाओगे और सेर ना होगी। यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर खुदा ने अदालत कर दी। जब खुदा के लोग खुदा से दूर जाते हैं, जब उसकी बातों को नहीं मानते, जब उसके हुकाम की पैरवी से रूगदानवी करते हैं, तो फिर खुदा उनकी अदालत करता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यही कुछ जो अबार की किताब में लिखा है, उसी की वजह से ये तमाम कुछ हुआ। उसके जंगली दरिंदे खानेंगे, फिर मौत तुम पर आएगी और फिर तुम पर काल पड़ेगा, वबा आएगी। और ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इसलिए रूनुमा हुई क्योंकि लोगों ने खुदा की पैरवी करना तर्क कर दी। और ये वो वक्त है, चौथी मोहर के खुलने का वक्त, अदालत की आगाही का वक्त है मेरे लिए और आपके लिए। ये वो वक्त है जब मुझे और आपको आगाह किया गया है। मूसा ने बड़े वाज़िया तौर पर उन्हें बता दिया था। इसके अलावा हिजकिय्येल ने भी उन्हें बताया था कि इन कामों का अंजाम क्या है। हिजकिय्येल 14 बाब और 21 आयत। असीरी में जाएंगे, हलाक होंगे, जहां बीमारी तुम पर हमला करेगी। जब खुदा गज़बनाक होता है, जब उसका गुस्सा भड़कता है, तो फिर गुनाहगारों को भस्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के लोगों के लिए ये जागने का वक्त है। अदालत बहुत करीब है और चौथी मोहर हमें अदालत का पैगाम देती है कि इससे पहले कि ये अदालत आए, खुदा के करीब आना जरूरी है। खुदा के लोगों के लिए अदालत कोई अहमियत नहीं रखती। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि खुदा उनके करीब है और खुदा के अदालत उनके लिए खुशखबरी है। सफेद घोड़ा आपने देखा, खुदा का कलाम फैला। लाल घोड़ा, लोगों को आज़ारसानी दी गई खुदा के कलाम की बदौलत आज़ारसानी। काला घोड़ा, जिसकी वजह से खुदा का कलाम जो है वो मिलिया मेट किया गया, खुदा के कलाम का काल पड़ गया। और फिर हम जर्द घोड़े के बारे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये अदालत का वक्त होगा। और ये अदालत का वक्त इसलिए है क्योंकि उसके बाद जब हम उसके बाद की मोहर देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि आखिरी वक्त के लिए पैगाम जो यहाँ पाया जाता है, उसके बाद क्या होने वाला है। आइए मकाशवा 14वां बाब और उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया गया कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। आइए मकाशवा 14 बाब, जो जल्दी निकाल ले वो जल्दी पढ़े क्योंकि देर ना लगाए। 14 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में से उठते हुए देखा कि जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम, कबीले, अहले ज़बाने, उम्मत के सुनाने के लिए अपनी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डर और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा। और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा ये 3 फरिश्तों का पैगाम है। और ये पहले फरिश्ते का पैगाम जो है ना, ये मुझ पर वाज़िया करता है कि वक्त करीब है। कहता है कि हर एक के लिए खुशखबरी है, अब्दी खुशखबरी है। हर कौम, कबीला, अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी है। और उसने बड़ी आवाज़ से चलाकर क्या कहा कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। अदालत का वक्त आ पहुंचा है। हम तो कह रहे हैं कि अदालत आएगी, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाज़िया कर दिया गया कि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। कब से शुरू हुआ अदालत का वक्त? चौथी मोहर जैसे ही क्लोज होती है, हम देखते हैं कि ये इसी में अदालत का वक्त जो है वो हमें उसके लिए तैयारी करनी है। और जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद जो होने वाला है, या आपने 4 घोड़े पढ़े,
اس کے بعد گھوڑوں کا ذکر ختم ہو گیا، جاندار جو 4 مکاشفہ چوتھے باب میں آپ نے پڑھے ان کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ لیکن جب آپ 5ویں مور دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ آئیے 6 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اور جب اس نے 5ویں مور کھولی تو میں نے قربانگاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کی وجہ سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی دیر مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو جائے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ یہ 5ویں مور ہے۔ اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مذبح کے نیچے، قربانگاہ کے نیچے روحیں ہیں۔ وہ روحیں کون سی ہیں؟ اور ان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ تو کب تک انصاف نہ کرے گا۔ یہ روحیں کون سی ہیں؟ جو گواہی دینے کی بدولت قتل کیے گئے لوگ ہیں، جو یسوع مسیح کی گواہی کی بدولت قتل کیے گئے، انہیں مارا گیا۔ اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک قدوس، تو انصاف کب کرے گا؟ وقت آ گیا ہے کہ اب تو انصاف کرے۔ اب وقت ہے کہ تو اس دنیا کی عدالت کرے اور یہ دنیا کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اور کہہ رہا ہے کہ خون کا بدلہ لے گا، تو کب تک ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ ان کو کہا گیا کہ انتظار کرو۔ اور یہ وہ وقت ہے جس میں آج خدا کے لوگ خدا کی عدالت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہم مذبح کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے حقیقت میں 5ویں مور کا، مذبح کے نیچے وہ کہتا ہے کہ میں نے روحوں کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاید آپ جانتے ہوں کہ پرانے عہد نامے میں جب قربانی کی جاتی تھی، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ابار اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قربانی کی جاتی تھی، کوئی نکال لے تاکہ پھر جب میں ختم کروں تو اس کو ہم پڑھ سکیں۔ اوکے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوختنی قربانی کی جاتی تھی تو قربان گاہ پر خون چھڑکا جاتا تھا، لیکن باقی خون جو ہے وہ کہاں رکھا جاتا تھا؟ وہ اس کے مذبح کے اوپر انڈیل دیا جاتا تھا۔ وہ خون کہاں جاتا تھا؟ وہ مذبح کے نیچے جاتا تھا۔ پڑھیں جی ابار 4 باب اور اس کی 7 آیت۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ ابار 4 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا، اور کاہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے، اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈھیل دے۔ آمین۔ اب جب یہ انڈیل دے، سوختنی قربانی اس کو جلایا جاتا تھا۔ سوختنی قربانی کو ہمیشہ جلایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوا، کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خون زندگی ہے، خون زندگی ہے، اور اس زندگی کو جانوروں کا خون جلایا جاتا تھا، وہ مذبح کے نیچے چلا جاتا تھا۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایماندار جو خدا کے لیے قربان ہوتے ہیں ان کا خون علامتی طور پر یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ مذبح کے نیچے ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون پکارتا ہے کہ ہمارا بدلہ لے۔ اب خون جب پکارتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے پیدائش 4 باب اور اس کی 10 آیت دیکھتے ہیں۔ پیدائش 4:10 آیت میں آپ کو ذکر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح
जब कहन ने हाबल को कत्ल किया तो खुदावंद ने क्या आवाज दी, खुदावंद ने क्या कहा, और उसके जरिए हमें पता चलता है कि इस बात को हम समझ सके कि खून की आवाज नहीं होती, क्यों खून पुकारता है। पैदाइश 4 बाब और उसकी 10 आयत, बल्कि 7 आयत से पढ़िएगा प्लीज, 7 आयत से। जी, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर डंका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। पर तू उस पर गालिब था। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। अब आपको समझ आई? की तरफ से यस, थैंक यू, ओके, आपने थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आपने देखा, कहता है खुदा कहता है कि तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। तो यहाँ पर जो मसबे के नीचे खुदा खून है, जो खुदा के लोगों का खून बहाया गया है, उसके वो पुकार रहा है कि खुदावन तू कब इंसाफ ने, कब तक इंसाफ नहीं करेगा। जानवरों का खून और फिर ये खुदा के शहीद होने वालों का खून, बरगजीदों का खून, नबियों का खून जो बहाया गया, वो ये अर्ज कर रहा है। आवाज नहीं है, ये अलामती तौर पर है, और इसे हमें अलामती तौर पर ही समझना है कि हाबल का खून जो बहाया गया वो क्या था। अब ये वो कहता है कि बदला ना लेगा, तो कब तक बदला ना लेगा? क्या ईमानदार ये चाहते हैं कि उनके खून का बदला लिया जाए? उनको नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदा से वो ये कह रहे हैं कि खुदावन तू इंसाफ कर, इंसाफ कर। अदालत का वक्त आ पहुंचा है, अदालत कर और इंसाफ कर, ताकि जो कुछ किया गया है उसका हर एक का अंजाम जो है उनके किए के मुताबिक मिले। बदला वो हकीकी, बल्कि हकीकी इंसाफ चाहते हैं, बदला वो हरगिज़ नहीं चाहते। हम जानते हैं कि ये जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका आज के ज़माने से कितना गहरा ताल्लुक है। और फिर वो क्या, उन्हें क्या कहा गया कि वो लोग जो अभी तुम्हारे साथ शामिल होने वाले हैं, ईमानदार, जो खुदा का काम इस दुनिया में आज कर रहे हैं, वो ईमानदार, वो वक्त आएगा, बल्कि है कि आज भी ईमानदारों को कत्ल किया जा रहा है और हम इस मोहर के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आखिरी वक्त अदालत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं और खुदा के लोगों का खून उसको कह रहा है कि भाई इंसाफ करो। इंसाफ का वक्त खुदा ये चाहता है कि इंसाफ कर दिया जाए, लोग उसके चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए, लेकिन खुदा कहता है कि थोड़ी देर और सब्र करो। जब ये कहा गया, ये वक्त 1798 में ख़त्म हो गया इस मोहर का। उसके बाहर बात क्या हुआ? आइए छठी मोहर के मतलब पढ़ते हैं। ये पढ़े, कौन पढ़ेगा? काशवा 6 बाब, सातवीं है, नहीं ये छठी मोहर जो है, छठी में 12वीं आयत। हाँ 12वीं। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कंबल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हल के अंजीर के दरख्त में से गुच्छे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे।
और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गजब से छुपा लो। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उनके गजब का रोज़े अजीम आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये छठी मोहर का वक्त है। इसमें क्या वो कहता है, वो बंचाल का जिक्र करता है, वो काल का जिक्र करता है, आपने सितारों के गिरने का, चांद का, सूरज का, ये कि रोशनी से महरूम कर दिए जाएंगे। ये कब का वक्त है, ये कब हुआ, क्या ये हो चुका है या नहीं हुआ? आइए मैं आपको थोड़ी देर के लिए वो दुनिया में होने वाले वाक़यात की तरफ ले जाना चाहता हूँ। 1755 में लिस्बन में बहुत बड़ा बंचाल आया जिसमें 100,000 पीपल वर किल्ड। बंचाल, ये तमाम चीज़ें मसीह की आमद के वक्त और शिद्दत के साथ आ रही हैं। ये बंचाल 1755 में आया। मई 1780 में सूरज ने पूरा दिन अपनी रोशनी नहीं दी। चांद रात को रोशनी से महरूम था। अंधेरा, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। और फिर 1833 में हम देखते हैं कि सितारे ज़मीन पर गिरे। अजीज़ों, जिस तरह बाइबल में लिखा है बिल्कुल उसी तरह वाक़यात रूनुमा नहीं हुए। जिनका पहले जिक्र किया है वो पहले और उसके बाद दूसरे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि हम कहाँ पर खड़े हैं? हम उस वक़्त खड़े हैं जब दुनिया का खात्मा बिल्कुल करीब है और ये तमाम वाक़यात हो चुके हैं। अब जो बाकी वाक़या रह गया है वो क्या है? वो यीशु मसीह की आमद है। यीशु मसीह उसके बाद इस दुनिया में आएंगे और जहाँ पर लिखा है कि फौजी सरदार या दूसरे बादशाह या दूसरे लोग जो है वो उन सब की अदालत होगी। उन सब को खुदावंद उनके किए की सज़ा देगा, इंसाफ किया जाएगा। लेकिन अजीज़ों, ये वो वक्त होगा जब हमारे लिए ये खुशखबरी है। ये हमारे लिए इसलिए खुशखबरी है कि खुदा मुझे और आपको बचाने के लिए आ रहा है। ये उनका अपना चुनाव था, जो कुछ उनको मिला, जो कुछ उन्होंने किया उसके मुताबिक उन्हें उनका चुनाव मिल गया। आपने चुनाव क्या किया? आपने खुदा का चुनाव किया या नहीं? अगर नहीं किया तो वक्त बहुत कम है, और अगर वक्त बहुत कम है तो फिर मुझे और आपको उस सच्चाई को लेकर आगे जाना है। आखिरी वक्त में वही वाक़यात होने वाले हैं। खुदा के कलाम को हर जगह फैलाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है, और अगर हमने उसको ना फैलाया तो खुदावंद तो अपने वक्त पर आएगा। किस तरीके से वो उस काम को करेगा मैं और आप नहीं जानते, लेकिन हम उसकी आमद में शरीक नहीं हो सकेंगे। इसलिए उसके कलाम को फैलाने की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है। जैसे हमने मुकाशवा 14 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में पढ़ा कि उसकी अब्दी खुशखबरी का पैगाम, अब्दी खुशखबरी का पैगाम क्या है? उसकी आमद का पैगाम मुझे और आपको देने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद खात्मा यकीनी है। 5वीं मोहर, 6ठी मोहर और फिर 7वीं मोहर का जिक्र हम बाद में करेंगे। खुदा सच्चा और बरहक है, और वो वक्त आएगा जब ये तमाम कुछ होगा। जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब मैं मसीह को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा अब्दी ज़िंदगी लाज़म है। मैं मर नहीं सकता। मैं खुदा की बादशाहत का वारिस हूँगा जब मैं मसीह पर नज़र करता हूँ। जब आप अपने आप को देखते हैं तो शायद आपको भी ऐसा मालूम होता हो कि मैंने क्या किया है जो खुदा मुझे बचाए। लेकिन जब हम मसीह को देखते हैं तो हमें कामल यकीन होता है कि हमारी ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी है। तो आइए हम इन बातों को याद रखें
کہ یسوع مسیح کی آمد کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے اور مصیبتیں یہ تمام کچھ ہوگا اور اس کے بعد یسوع مسیح آئے گا. اگر آپ متی 24 باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزوں کے بعد کیا ہے. اس کے بعد خاتمہ ہے, یسوع مسیح آ جائے گا. متی 24 باب اور اس کی 29 آیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر وہی زبان استعمال کی گئی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بہت قریب ہے. کوئی بھی اس کی عدالت سے نہیں بچ سکتا. کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ملاکی 3 باب کی 2 آیت میں کون اس کے آگے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس کی عدالت کا وقت جب آئے گا تو کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا. صرف وہی جو اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین. کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, خدا کے بیٹے کے لیے, خادم کے لیے